हाँ जी, आज अपना आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। In the previous lecture we have discussed about empirical formula. What do you mean by empirical formula? The formula which gives the simplest whole number ratio of various elements present in a given compound is known as empirical formula. Next is molecular. Write down the definition. The formula which gives the actual number of atoms of various elements present in a given compound is known as molecular formula. So what is molecular formula? The formula which gives the actual number of atoms of various elements present in a given compound is known as molecular formula. For example, H2O2, hydrogen peroxide. In hydrogen peroxide, if we write down its empirical formula, then various elements are hydrogen and oxygen. 2 atoms, ratio will be 1:1. So its empirical formula will be equal to HO. But its molecular formula will be written as H2O2, because molecular formula is nothing, simply the formula of a given compound which tells us about the actual number. Actual number means in hydrogen peroxide there are 2 atoms of hydrogen and there are 2 atoms of oxygen. This is known as molecular formula and this is known as empirical formula. Next is, what is the relationship between empirical formula and molecular formula? So what is the relationship between empirical and molecular formula? Molecular formula, it is equal to n times of empirical formula. What is molecular formula? It is n times of empirical formula, where n can be any whole number. Whole number means 1, 2, 3, so on. So molecular formula is n times of empirical formula. Now next question is, how can we calculate n? So n is calculated as molecular mass divided by empirical mass. So what is n? n is the ratio of molecular mass and empirical mass. So this is all about empirical formula and molecular formula. So what is empirical formula? The formula which gives the simplest whole number ratio of various elements present in a given compound is known as empirical formula. Next is molecular, the formula which gives the actual number of atoms of various elements present in a given compound is known as molecular formula. Then what is the relationship between empirical and molecular formula?
molecular formula, it is equal to n times empirical formula. So what is n? N is any whole number. It can have value 1, 2, 3 and so on, and n is calculated as the ratio of molecular mass to empirical mass, empirical formula mass. Now we will solve some numericals related to calculation of empirical and molecular formula. हाँ जी, तो लिखो द मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गिवन कंपाउंड is 78 and its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen. Determine the molecular formula of the compound. So this is the problem. We have given the molecular mass, it is equal to 78 and its percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen. We have to determine its molecular formula. So solution: for determining the molecular formula and empirical formula, we have to make one table. ठीक है, here we will write element, then their percentage composition, then their atomic mass, then their moles of atoms, mole ratio, and last is simplest whole number ratio. So for discussing this type of problems, we have to make such table. In the first column we have to write element, then their percentage composition, atomic mass, moles of atoms, mole ratio and simplest whole number ratio. So elements, formula of a given compound के according ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ दो elements ने, कार्बन और हाइड्रोजन. So we will write कार्बन and हाइड्रोजन. ठीक है बेटा, ਜਿਹੜੇ भी एलिमेंट्स गिवन ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लिख लो, कार्बन और हाइड्रोजन. नेक्स्ट इज देयर परसेंटेज कंपोजिशन. कार्बन की परसेंटेज कितनी है 92.4 और हाइड्रोजन की गिवन है 7.6. देन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट. कार्बन का एटॉमिक मास कितना होंदा है 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होंदा है 1. ठीक है, सब तो पहला जो एलिमेंट्स गिवन ने वो लिख लो, दैन उन्होंने जो परसेंटेज गिवन है वो लिख लो, दैन उन्होंने जो एक्चुअल एटॉमिक मासिस होंदे ने वो लिख लो. कार्बन का एटॉमिक मास कितना होंदा है 12 और हाइड्रोजन का कितना होंदा है 1. दैन मोल्स ऑफ एटम,
मोल्स ऑफ एटम्स कड्ढण लई सानू की करना पैंदा है, परसेंटेज कंपोजिशन नू डिवाइड करना है विद इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, सो इट इज़ इक्वल टू 7.7। जो तुसीं इहनूं डिवाइड करोगे इट विल बी 7.7। सिमिलरली इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है 7.6 और इसका एटॉमिक मास कितना है 1, तो एक ही आ जाएगा 7.6। ठीक है, मोल्स ऑफ एटम्स लिए की फॉर्मूला है, जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसनों उसके एटॉमिक मास नाल डिवाइड कर दो। हुण बेटा जो तुहाडे कोल मोल्स आए ने, इन्हां विचों तुसीं देखना है कि इन्हां चों सब तो छोटा नंबर किहड़ा है, 7.7 या 7.6। जिहड़ा भी छोटा है उन्होंने तुसीं डिनोमीनेटर दे विच लिख लेना है। डिनोमीनेटर का मतलब उस नाल असी दोनों नू डिवाइड करना है। दोनों नू मतलब 7.7 नू भी असी इहदे नाल डिवाइड करना है और 7.6 नू भी असी इहदे नाल ही डिवाइड करना है। तो जो तुसीं इसनू डिवाइड करोगे इट विल बी 1.01 एंड इट इज़ एग्जैक्टली 1। ठीक है, हुण जिहड़ा 1.01 है इनू असी 1 नहीं मान सकते हैं। ठीक है, और 1 तो है ही 1, तो इट मीनस असी इस टेबल की हेल्प नाल की कैलकुलेट कर लिया कि जो तुहाडे कोल गिवन कंपाउंड है उस विच किहड़े-किहड़े एलीमेंट सी बेटा, कार्बन ते हाइड्रोजन उन्होंने गिवन सी, और उन्होंने रेशियो तुसी कितनी फाइंड आउट कर ली 1:1। सो इट इज़ इंपीरिकल फॉर्मूला। सो जी ये सिंपलेस्ट रेशियो आई है 1:1, एक ही इंप्लाई कर रही है कि जो तुहाडे कोल कंपाउंड गिवन है उहदे विच कार्बन भी 1 है और हाइड्रोजन भी 1 है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला की बन गया CH। ठीक है बेटा, हुण असी कैलकुलेट की करना है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास तक पहुँचण लई पहला सानू N कैलकुलेट करना पेगा। ठीक है, तो N की हुंदा है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। ठीक है बेटा, की फॉर्मूला है N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास तुहाडे कोल गिवन है 78। ठीक है, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल मास बेटा जो तुहाडे कोल एम्पिरिकल फॉर्मूला आया है उस तो तुसीं उहदा मास कट सकते हो। देखो इह किन्ने कार्बन ने 1, तो एक कार्बन का मास कितना होंदा 12, किन्ने हाइड्रोजन ने 1 और एक हाइड्रोजन का मास कितना होंदा 1। तो इंपीरिकल मास कितना आ गया 12 + 1 13। ठीक है, सो इट इज़ 13। तो जो तुसीं इहनूं कट करोगे इट विल बी 6। तो N की वैल्यू की आ गई बेटा तुहाडे कोल 6। तो अपने कोल पहला सी फॉर्मूला लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इट इज़ इक्वल टू N टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो N असी कितना कैलकुलेट कर लिया 6, एम्पिरिकल फॉर्मूला की सी तुहाडे कोल CH। तो जो तुसीं इहनूं कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी C6H6। तो यही आपां कढ़ना सी डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की बन गया C6H6। ठीक है, इस टेबल की हेल्प नाल असीं सब तो पहला की फाइंड आउट किया सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो तो असीं की फाइंड आउट कर सकते हैं इंपीरिकल फार्मूला। जो तुहाडे कोल इंपीरिकल फार्मूला आ गया उत्थों तुसीं उहदा इंपीरिकल मास भी फाइंड आउट कर सकते हो। इंपीरिकल मास फाइंड आउट करन तो बाद वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N। सो N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास। तो उहदे नाल N की वैल्यू कट ली
अगर अपने को n की वैल्यू है दैन वी कैन यूज़ दिस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट इज़ इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फार्मूला। n टाइम्स मीनस जिन्ने भी एलीमेंट ने बेटा उन्होंने n नाल मल्टीप्लाई कर देना C6H6। सो आंसर इज C6H6। नाउ नैक्सट एक एग्जाम्पल आप होर कर लेने हैं। हाँ जी, लिखो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव कार्बन इज इक्वल टू 57.8%, हाइड्रोजन is equal to 3.6%, and the rest is oxygen. Vapor density या the molecular mass of a given compound is 166. Find out the molecular formula. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट अपने को जो प्रॉब्लम है, अगेन वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इतनी मैं थोड़ी जी स्टेटमेंट चेंज की है। एक्चुअल दे विच इत्थे मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं सी 166, मैं तुहानू गिवन है। समटाइम्स एग्जाम्स दे विच तुहानू मॉलिक्यूलर मास की जगह वेपर डेंसिटी गिवन हुंदी है। की गिवन हुंदा है? वेपर डेंसिटी। तो अगर तुहानू वेपर डेंसिटी गिवन होवे तो मॉलिक्यूलर मास दा फॉर्मूला की हुंदा है 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। मीनस पेपर दे विच तुहानू मॉलिक्यूलर मास की जगह इत्थे वेपर डेंसिटी भी गिवन हो सकती है। तो अगर तुहाडे कोल इत्थे वेपर डेंसिटी गिवन है तो तुसी मॉलिक्यूलर मास किवें फाइंड आउट कर लेना, 2 नू मल्टीप्लाई कर देना वेपर डेंसिटी नाल। ठीक है, हाँ जी। हुण अपने कोल फिर की है, वी हैव टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने लई अगेन वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्टली इंपेरिकल फार्मूला। पर उस तो पहला भी साडे कोल एक प्रॉब्लम की है कि जो सानू कंपाउंड गिवन है उस दे विच सानू 2 चीज़ों की परसेंटेज गिवन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। थर्ड ऑक्सीजन की असी फाइंड आउट करनी है क्योंकि उन्होंने लिखा रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो देखो कार्बन कितना है 57.8 और हाइड्रोजन कितना है 3.6। पहले इन्होंने तुसी प्लस कर लो, ये कितना बन गया 61.4। द ऑक्सीजन की वैल्यू असी किवें कढ़नी है 100 दे विचों इसनू माइनस करके। सो इट विल बी 38.6%। ठीक है, तो इस तरीके नाल सब तो पहला असी की चेक करना है कि जो सानू परसेंटेज गिवन है वो टोटल 100% बन रही है कि नहीं। अगर नहीं बन रही तो इसका मतलब उस तीसरा एलीमेंट कौन है? ऑक्सीजन। तो जिन्ने गिवन है उन्होंने ऐड करके उसनू 100 चो माइनस कर देने ते साडे कोल किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। सो हुण असी फाइंड आउट करांगे इंपेरिकल फार्मूला। तो साडे कोल टेबल बनाना पेगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट, देन परसेंटेज कंपोजिशन, देन एटॉमिक मास, देन मोल रेशो। ठीक है, moles of atom, then mole ratio, then simplest whole number ratio. This is element, this is percentage composition, this is atomic mass, then moles of atoms, then mole ratio, and last is simplest whole number ratio। ठीक है बेटा, हम साढ़े कुल केड़े-केड़े एलिमेंट गिवन ने? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
कार्बन की परसेंटेज 57.8, हाइड्रोजन 3.6 और वो असी कैलकुलेट की सी 38.6। हाँ जी ठीक है बेटा। हुण एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16। हुण असी कढ़ने ने मोल्स ऑफ एटम्स, तो जिन्नी परसेंटेज है उसनू उसके एटॉमिक मास नाल डिवाइड कर दो। 3.6 नू 1 नाल, 38.6 नू 16 नाल। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 4.82। जो तुम इनू डिवाइड करोगे 4.82, 3.6 एंड इट इज़ इक्वल टू 2.41। तो साढ़े को 3 वैल्यूज़ आ गई, 4.82, 3.6 एंड 2.41। तो असी इस सब तो छोटी सिलेक्ट करनी है। सब तो छोटी केड़ी है 2.4, 2.4, 2.4, 2.4। ऊपर की लिख लेना है 4.82, 3.6, 2.4। तो जो तुम इसमें डिवाइड करोगे इट विल बी 2, इट विल बी 1.5, इट विल बी 1। ठीक है। हुण देखो बेटा आ जिहड़े 2 नंबर ने ये तो होल नंबर ने 2 एंड 1, पर ये जिहड़ा नंबर है ये होल नंबर नहीं है। ये की है 1.5, ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो असी 1.5 नू होल नंबर च कन्वर्ट करना है। होल मीनस उन्होंने असी 1, 2, 3, 4 की फॉर्म च लिखना है। तो अगर मैं इसनू 2 नाल मल्टीप्लाई करदा तो ये कितना बन जाएगा 3। इसका मतलब ये होल नंबर बन गया। बट फिर अगर तुसी इसनू 2 नाल मल्टीप्लाई किया है तो इनू भी करना पेगा और इनू भी करना पेगा। तो ये कितना बन जाएगा 4 और ये कितना बन जाएगा 2। मीनस जी तुहाडे कोल रेशो आ रही है बेटे, इनू तुसी काहदे च कन्वर्ट करना है पहला होल नंबर रेशो। तो की बन गई 4, 3 एंड 2। तो इत्थों असी इन्हां दा इंपीरिकल फार्मूला लिख सकते हैं। कार्बन किन्ने ने 4, हाइड्रोजन किन्ने ने 3 ते ऑक्सीजन किन्ने ने 2। सो इट इज़ इट्स इंपीरिकल फार्मूला। नेक्स्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द N. So N is molecular mass divided by empirical formula mass। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास सानू गिवन है 166 डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। तो असीं इत्थों कट सकते हैं 4 × 12, 3 × 1, 2 × 16। इट इज़ 83। तो ये आ गया 83। तो जो तुम इन्हू डिवाइड करोगे इट विल बी 2। तो वैल्यू तो जो असी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है असी मॉलिक्यूलर मास नू डिवाइड कर देना है इंपीरिकल मास नाल। तो जो असी इन्हू डिवाइड करता तो ये वैल्यू आ गई 2। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला इट इज़ इक्वल टू n टाइम्स इंपीरिकल फार्मूला। तो n कितना है 2, इंपीरिकल फार्मूला कितना कढ़िया सी C4H3O2। तो इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला की बन जाएगा बेटा C8H6O4। तो आंसर की आ गया अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड इज C8H6O4। तो इस तरह असी किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो असी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या इंपीरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है थोड़ा व्हाट डू यू मीन बाय स्टोशियोमेट्री ऑफ केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्टोशियोमेट्री ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये जो स्टोशियोमेट्री ऑफ केमिकल इक्वेशन है बेटा जस्ट ये तुसी समझना है, इसनों रट्टा नहीं लगाना ना ही इसनों तुसी कुछ याद करना है। ठीक है। स्टोशियोमेट्री
फॉर एग्जाम्पल सानू इक्वेशन कोई भी कैमिकल रिएक्शन गिवन है N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। ठीक है, की गिवन है N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। तो स्टोशियोमेट्री का मतलब हुंदा है कि जो डिफरेंट चीज़ां रिएक्ट कर रही ने या बन रही है उस दे अगे केड़ी वैल्यू लिखी हुई है। तो हुण अगर असीं ध्यान नाल देखिए नाइट्रोजन के अगे कुछ नहीं लिखा तो मैं 0 पाया। इट मीनस नाइट्रोजन का 1 मोल है, कुछ नहीं लिखण का मतलब है इट्स 1 मोल। तो असीं इहनूं किवें पढ़दे हां इक्वेशन नूं, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन reacts with 3 moles of hydrogen to give 2 moles of ammonia। असीं किवें पढ़ना है, 1 mole of nitrogen reacts with 3 moles of hydrogen to give 2 moles of ammonia। तो इन्हों की कहा जाता है 1, 3, 2 दीज आर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। की कहा जाता है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का मतलब अगे की लिखिया है। ये जी इक्वेशन लिखी गई है इसको कैमिकल इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि असी ये दसिया है कि किहड़े कैमिकल रिएक्ट करके की बना रहे हैं। तो ये बेटे सानू कई बार लिखा होंगे जी जी जी, ये सब चीज़ां तुसीं 9th च पढ़िया हुई ने। इत्थे जी का मतलब की है कि जो नाइट्रोजन लिती है वह भी गैशियस फॉर्म च है, हाइड्रोजन भी गैशियस फॉर्म च है, तो अमोनीया जिहड़ा बन रहा है वह भी किहड़ी फॉर्म च है, गैशियस फॉर्म दे विच। ठीक है, कई बार इत्थे एक ट्रायंगल पाई होंदी है तो वह मतलब होंदा है कि ये रिएक्शन करन लई सानू इसनूं गर्म करना पैंदा है, हीट करना पैंदा है। ठीक है, कई बार इस इक्वेशन दे विच एनर्जी बनती है तो इत्थे प्लस एनर्जी पाया होंदा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पढ़न का एक तरीका तो यह है इन द टर्म्स ऑफ मोल्स, मीनस किन्ने मोल किस चीज़ के रिएक्ट करके साडे कोल किन्ने मोल्स किस चीज़ के बनते पे ने। ठीक है, या असीं इहनूं होर तरीके नाल किवें पढ़ सकते हैं, 1 मॉलीक्यूल, क्योंकि N2 है तो उन्हें एटम नहीं है, ये की बन चुका है मॉलीक्यूल। तो असीं इहनूं इदां भी पढ़ सकते हैं 1 मॉलीक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 molecules of hydrogen to give 2 molecules of ammonia। तो असीं इहनूं इन टर्म्स ऑफ मॉलीक्यूल्स भी पढ़ सकते हैं। किवें किवें पढ़ सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोल्स या इन टर्म्स ऑफ मॉलीक्यूल्स। इन्हूं किवें पढ़िया जा सकता है, 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecules of hydrogen to gives 2 molecules of ammonia। ठीक है, या असी इनू की कह सकते हैं, अच्छा अगर असी इहदा मास कैलकुलेट करिए तो ये आ जाएगा 28 ग्राम, ये आ जाएगा बेटा थोड़ा 6 ग्राम, तो ये बन जाएगा थोड़ा 34 ग्राम। तो असी इनू मास की फॉर्म च भी पढ़ सकते हैं, जी मीनस ग्राम। असी इनू किवें लिख सकते हैं, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 6 gram of hydrogen to give 34 grams of ammonia। मीनस असी इसनों मोल्स की फॉर्म च भी पढ़ सकते हैं, असी इसनों मॉलीक्यूल्स की फॉर्म च भी पढ़ सकते हैं, असी इसनों मास की फॉर्म दे विच भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट असी पढ़ सकते हुन्ने आ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। बट जिथे वर्ड वॉल्यूम आ जाए बेटे उत्थे इन्हां चीज़ों का गैस फॉर्म दे विच होना जरूरी है। ठीक है, हुण जदों असीं मोल कंसैप्ट कीता सी असीं लिखिया सी
1 mole of each gas is equal to 22.4 लीटर at STP। ठीक है, मीनस जो किसी भी गैस का 1 मोल होंदा तो वॉल्यूम कितना होंदा है 22.4 लीटर। हुण देखो नाइट्रोजन के किन्ने मोल सी 1 मोल, तो यदा मतलब इसका कितना वॉल्यूम है 22.4 लीटर। हाइड्रोजन के किन्ने ने बेटा 3 मोल, तो 3 नूं तुसीं मल्टीप्लाई करोगे 22.4 नाल, तो बनते की भी ने 2 मोल्स ऑफ अमोनीया मीनस 2 × 24। तेनों तो असी इस इक्वेशन नूं इस तरीके नाल भी पढ़ सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 62.4 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स अस 44.8 लीटर्स ऑफ अमोनीया। मीनस असी इसनूं वॉल्यूम की टर्म दे विच भी पढ़ सकते हैं। तो साडे कोल 4 तरीके ने बेटा इक्वेशन पढ़न के, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मोल्स और इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ देयर मासेस और इन द फॉर्म ऑफ देयर वॉल्यूम्स। बट वॉल्यूम्स दे लई तुहाडा इन्हां सारियां चीज़ां दा गैसियस फॉर्म दे विच होना जरूरी है। ठीक है, तो इन्हों सिंपली की किया जाता है बेटा स्टोशियोमीट्रिक कैलकुलेशंस। की किया जाता है स्टोशियोमीट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, हुण नैक्सट लैक्चर दे विच असीं इन्हां नाल रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और जो बाकी अपना पेंडिंग पोर्शन है वो डिस्कस करांगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।